Very good morning to one and Good morning, sir. Good morning, sir. yes, very good morning. Good morning, sir. Good morning, good morning. The sound is okay? Yes, Yes, sir. sir. So section C and section B both are here. Yes. Yes, 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 exactly. section B and section C. Okay. So guys, let's start. In last class, we were talking about differential equation of first order, and we have done linear differential equation, both patterns, dy by dx pattern and dx by dy pattern. After that, reducible to linear differential equation of each and every type with dy by dx and dx by dy, both the patterns. Today we will discuss the next method for solving first order differential equations. Right now we are mainly dealing with ordinary differential equation of first order, so we will be discussing one more method of solution of first order linear differential equation. First order differential equation, not linear differential equation. ओके तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पैटर्न, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पैटर्न पढ़ लिया है. आज हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे इसका, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. यस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस. सो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, और उसके बाद में हमने स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चर्चा की थी, राइट? सिमिलरली you should know the general definition of exact differential equation, and after that we will discuss about first order exact differential equation. So write down the definition first. Write down. आप अपने कॉपी में लिखिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. मैं अभी जनरल डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, उसके बाद में हम फर्स्ट ऑर्डर पे आएंगे. So write down the definition of exact differential equations. A differential equation is said to be exact. A differential equation is said to be exact if it is directly integrable.
A differential equation is said to be exact if it is directly integrable. तो देखिए बेसिकली डेफिनेशन यही होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की, चाहे वो कितने भी ऑर्डर की हो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कितने भी ऑर्डर की हो। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल होती है। मतलब ये हुआ कि यू कैन solve that equation, you can solve these kind of equation without introducing something, without introducing integrating factor, without introducing any other function, without assuming any other function as a variable t and anything else. कुछ भी assume किए बिना, कुछ भी integrating factor या और किसी function को introduce किए बिना आप directly उस differential equation को solve कर सकते हैं, which is directly integrable. And these kind of equations are called exact differential equations. Any doubt in definition? No, sir. Okay. अब बात करते हैं स्पेसिफिकली हम फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो देखिए फर्स्ट ऑर्डर जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका पैटर्न ये वाला होता है। m इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस n इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ देखिए आप डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये डी वाई है और ये डी एक्स है, तो बेसिकली ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। जैसे आप नॉर्मली जो फंक्शन लिखते हो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखते हो ना आप, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स माइनस जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो ये बेसिकली वही पैटर्न है। सो m of x y, any function of x y dx plus another function of x y dy is equal to 0. This first order differential equation is said to be exact if del m upon del y is equal to del n upon del x. This first order differential equation is said to be exact if first order partial derivative of m with respect to y is equal to first order partial derivative of n with respect to x, that is del m upon del y is equal to del n upon del x. तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को इस पैटर्न में लिखेंगे, dx का जो कोफिशिएंट होगा वो m हो जाएगा, dy का जो कोफिशिएंट होगा वो n हो जाएगा। m को y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये एक्स वाई का फंक्शन है, n को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये भी एक्स वाई का फंक्शन है। इफ बोथ आर इक्वल देन वी विल से द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इफ इट इज नॉट इक्वल then the given differential equation will not be exact, but we can convert that equation into exact. I will tell you after this. तो ऐसे हमें चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। पहली बात, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, if the differential equation is exact, then we can solve that equation by applying two methods. You can choose any one method. There are two methods for solving these kind of exact differential equations. So solution of exact differential equation of the type m dx plus n dy is equal to 0. देखिए दो मेथड है, दो में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड है ग्रुपिंग मेथड, ये कैसे एग्जीक्यूट करना है मैं अभी आपको समझाऊंगा क्वेश्चन लेके। और या फिर दूसरा मेथड है डायरेक्ट फार्मूला। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन ध्यान रखना इस फार्मूले में जो m है
नो डाउट फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, अभी बताया था मैंने आपको। इसमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इन m ट्रीट y एज ए कांस्टेंट, और इस n में टेक ओनली दोज टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम वेरिएबल x। यहाँ पे m में y को आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और इस n में आपको वो टर्म्स नहीं लेनी है जिसमें x हो। ठीक है, आपको सिर्फ वही टर्म्स लेनी है विच आर फ्री फ्रॉम x, वेरिएबल x। फिर ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, इस पीपीटी में जो सोल्यूशन दिया हुआ है आप उस पर मत जाइएगा, क्योंकि ये सोल्यूशन बुक के हिसाब से है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, इनमें सब में सोल्यूशन जो है, दीज ऑल सोल्यूशंस आर बेस्ड ऑन बुक। तो आपको इसको फॉलो नहीं करना है। मैं आपको जो सोल्यूशन बताऊंगा, जिस तरह से सॉल्व करने का मेथड बताऊंगा आपको, या दोनों मेथड बताऊंगा मैं आपको, ग्रुपिंग मेथड भी और डायरेक्ट फार्मूला भी, उनमें से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. लेट Yes, अस sir. ओके Yes, sir. ओके, थैंक यू। लेट अस डू वन क्वेश्चन। सॉल्व x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस y टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना है हमें। तो मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके बताता हूँ। ये एक बार ये क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं हम। सॉल्व x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dx प्लस y टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, y टाइम्स ऑफ y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। आपका ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। किस फॉर्म में? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो आप इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, और इधर इस y को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो यू विल ऑब्टेन एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dx प्लस y क्यूब प्लस 3yx स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। ये आपकी बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन है जो गिवन है। अब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए और बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर। X cube plus 3xy square. Yes, x cube plus 3xy square. And what is the value of n here? Yes, Y cube plus 3yx square. y cube plus 3yx square. यहाँ तो कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. Okay. Now calculate del m upon del y. del m upon del y का मतलब है m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। आपको तो पता ही है सबको। तो x को कांस्टेंट ट्रीट किया तो इसका 0 हो गया डिफरेंशिएशन, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ हो गया 6xy। नाउ कैलकुलेट del n अपॉन del x। n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग y एज ए कांस्टेंट।
तो y को कांस्टेंट लिया तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, और x के रिस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं तो ये हो गया 6xy। सिंस आप देख सकते हैं डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, therefore the given equation 1 is exact। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. गुड। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जैक्ट तो पता चल गया, अब इसे सॉल्व करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि दो मेथड है, आप कोई भी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको समझाता हूँ। मेथड नंबर 1, ग्रुपिंग मेथड। व्हाट इट इज कॉल्ड? ग्रुपिंग मेथड। ओके, ग्रुपिंग मेथड में क्या करना होता है, ये जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होती है, इक्वेशन नंबर 1, इसी को थोड़ा सा रीफॉर्म करके लिखना होता है। कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं करना है, लेकिन इसी को एक दूसरी स्टाइल में हमें लिखना है। उसका पैटर्न क्या रहेगा, जो जो टर्म्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल हैं उनको आप अलग कर दीजिए। जैसे एक्स क्यूब डी एक्स, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल है एक्स के रेस्पेक्ट में। वाई क्यूब डी वाई, ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल है वाई के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये वाला टर्म 3xy स्क्वायर डी एक्स, तो 3xy स्क्वायर जो है वो x के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि इट्स अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। सिमिलरली 3yx square is a function of x and y both, so we cannot integrate this function with respect to y directly। समझ में आ रही है बात आपको? Yes, sir. तो Yes, sir. प्योरली जो x का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है उसको आप dx के साथ में रख सकते हैं क्योंकि वो इंटीग्रेबल है। प्योरली y का फंक्शन होता है या कांस्टेंट होता है उसे आप dy के साथ रख सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इंटीग्रेबल होता है। लेकिन अगर x y का मिक्स फंक्शन है तो वो डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेबल नहीं होगा और डायरेक्टली y के रेस्पेक्ट में भी इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, तो उनको हमें अलग रखना है। तो ग्रुपिंग मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल टर्म्स है उनको अलग कीजिए आप। एक्स क्यूब डी एक्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल है, प्लस वाई क्यूब डी वाई डायरेक्टली इंटीग्रेबल है। अब कौन कौन से टर्म्स बचे? अब बचा 3xy स्क्वायर डी एक्स प्लस 3yx स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ में आई बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. ठीक है, अब जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है उनको एज इट इज लिख दीजिए फिलहाल। एक्स क्यूब डी एक्स प्लस वाई क्यूब डी वाई प्लस, और जो बाकी डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उनकी आपको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का मतलब होता है दो टर्म्स एक साथ लेके पेयर बनाना है या तीन टर्म्स एक साथ लेके पेयर बनाना है। यहाँ पे दो टर्म्स ही हैं तो इन दोनों को एक साथ लेके पेयर बनेगा। अब इस पेयर का क्राइटेरिया क्या होगा, आपको जो ग्रुपिंग करनी है वो इस तरह से लिखनी है कि ये किसी न किसी का डेरिवेटिव बन जाए, किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाए। जैसे ये जो दो बची हुई टर्म्स हैं इनको आप क्या लिख सकते हैं, किसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं किसका डेरिवेटिव लिख सकते हैं इसको। देखिए 3 कॉमन ले लीजिए, दोनों में से 3 कॉमन है, और इसको लिखिए कैपिटल डी। डी का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
लेकिन इसको क्रॉस वेरीफाई करना है आपको। देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y dy प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x dx। ओके, तो यहाँ से आप इसको चेक कीजिए, ये वाली टर्म बन रही है नहीं बन रही? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, 2 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बन रहा है, प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये देखिए वाई स्क्वायर एक्स डी एक्स बन रहा है, और 2 साथ में आ रहा है, यानी इसका डेरिवेटिव 2 साथ में आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब आप चेक कर सकते हैं 3/2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो ये वाला टर्म होगा। ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया आपको? यस सर। है ना? आपको क्रॉस वेरीफाई करके ज़रूर देखना है कि जिस भी टर्म की आप ग्रुपिंग कर रहे हैं वो किसी ना किसी का डेरिवेटिव बनना चाहिए, किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बनना चाहिए। ऐसा करने के बाद में अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो जब आप एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4/4 प्लस वाई क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे डी वाई के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा वाई रेस टू द पावर 4/4 प्लस 3/2 कांस्टेंट। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ और नॉट? Yes, sir. तो 3/2 कांस्टेंट, Yes, sir. so integration of differentiation of x square y square is equal to x square y square itself is equal to constant of integration। तो आप देख सकते हैं ये आपको जनरल सोल्यूशन मिल गया, x raised to the power 4/4 plus y raised to the power 4/4 plus 3/2 times of x square y square is equal to constant of integration। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इसके जनरल सोल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, दैट इज c। दिस इज ग्रुपिंग मेथड। एनी डाउट इन ग्रुपिंग मेथड? ग्रुपिंग मेथड से ये प्रूफ हो जाता है कि हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मैंने आपको डेफिनेशन ये लिखवाई है कि एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि डायरेक्टली इंटीग्रेबल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने डायरेक्टली लिया है, देखो यहाँ पे कोई भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की है, और इन स्टेप्स की हेल्प से मैंने इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल होती है। तो देखिए मैंने यहाँ डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दिया है, रीफॉर्म करके सॉल्व कर दिया है। सो दिस इज फर्स्ट मेथड। ठीक है, हो सकता है ये मेथड किसी को डिफ़िकल्ट लगे, तो मैं सेकंड मेथड बताता हूँ, वो सबको इजी लगेगा, वो डिफ़िकल्ट लग ही नहीं सकता क्योंकि उसमें डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए क्या होता है, सेकंड मेथड दिखाता हूँ मैं आपको। मेथड नंबर 2, डायरेक्ट फार्मूला। देखिए जब ये पता चल गया है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड है डायरेक्ट फार्मूला। और वो क्या होता है? वो ये होता है, फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन m dx प्लस n dy
इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन मैंने एक चीज़ इसमें लिखवाई थी, पीछे देखिए आप, ये देखिए, इस फॉर्मूले में m आपको पूरा लिखना है लेकिन उसमें y को कांस्टेंट एज्यूम करना है, और यहाँ पे n आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ वही टर्म्स लिखनी है जिसमें x ना हो, जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना हो। ओके, तो इंटीग्रेशन m पूरा लिखिए, m यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर dx प्लस n, ये n है, n में आपको वो टर्म्स लिखनी है जिसमें x ना हो। तो देखिए 3y स्क्वायर में तो x है, तो इसे छोड़ दीजिए, सिर्फ y क्यूब लिखना है आपको, y क्यूब dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया, जब आप इस टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो इस m में आपको y को कांस्टेंट एज्यूम करना है, अभी मैंने बताया था। ओके, तो y को कांस्टेंट एज्यूम करना है, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया x रेज टू द पावर 4/4 प्लस 3y स्क्वायर, तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि y को कांस्टेंट एज्यूम करना है, x dx का मतलब x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, प्लस y क्यूब dy, that is y raised to the power 4/4 is equal to constant of integration. This is your answer. ओके, तो आप देख सकते हैं बोथ आंसर्स आर इक्वल, दोनों आंसर सेम है, बोथ आंसर्स आर सेम, so you can apply any method. Method second is clear everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कौन सा मेथड आपको ज़्यादा इजी लगा? Second, sir. ऑब्वियसली सेकंड। ध्यान रखना बस, सेकंड मेथड में m dx में m पूरा लिखना है लेकिन इसमें y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, और n में पूरा n नहीं लिखना है, सिर्फ वही टर्म्स लिखने हैं जिसमें x ना हो, और सिंपली उसको इंटीग्रेट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए जल्दी से, मैं इसको रब करूँगा, और कोई डाउट हो तो बताइए। Okay guys, have you taken? Yes, sir. ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये वाला। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा मैं आपको बड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ जिसमें ग्रुपिंग मेथड और अच्छे से समझ में आए, क्योंकि फॉर्मूले से तो आप कर ही लोगे। चलो आगे कर लेंगे, अभी तो देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व e raised to the power y plus 1 times of cos x dx plus e raised to the power y sin x dy is equal to 0। तो सबसे पहले आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म m of x y dx plus n of x y dy is equal to 0 से कंपेयर कीजिए। तो बताइए m का वैल्यू क्या होगा? Yes, what will be the value of m? E to the power y plus 1 cos x. Yes, m will be e raised to the power y plus 1 cos x, which is the coefficient of dx, and n is equal to e raised to the power y sin x, which is the coefficient of dy. Now calculate del m upon del y. del m upon del y यहाँ से कैलकुलेट कीजिए। m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन टेकिंग x एज अ कांस्टेंट, तो cos x तो कांस्टेंट हो गया,
और e रेस टू द पावर y प्लस 1 का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ e रेस टू द पावर y ओनली, तो e रेस टू द पावर y cos x. Similarly, del n upon del x, the partial differentiation of n with respect to x taking y as a constant, तो e रेस टू द पावर y तो कांस्टेंट हो गया और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया. So you can see del m upon del y is equal to del n upon del x, which is e raised to the power y cos x. Del m upon del y is equal to del n upon del x. Is not so? Yes, sir. Yes, sir. So the given differential equation is exact or not? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. तो इसे आप सॉल्व कर Yes, sir. यस तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ग्रुपिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी कर Formula. सकते हैं. ठीक है, तो मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को वापस. ग्रुपिंग मेथड, आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो जो टर्म्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल है उन्हें पहले लिख दीजिए. e रेस टू द पावर y cos x डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है क्योंकि ये x और y का मिक्स फंक्शन है. e रेस टू द पावर y sin x डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है y के रेस्पेक्ट में बिकॉज इट्स अ मिक्स फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ. बट cos x into 1 that is cos x dx is directly integrable function. So from main equation we have, सबसे पहले जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल उस टर्म को लिख दीजिए cos x dx, that's it. अब बचे हुए जो दो टर्म्स हैं उनको लिखिए एज इट इज e raised to the power y cos x dx plus e raised to the power y sin x dy is equal to 0. कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल है उसे एज इट इज छोड़ दीजिए cos x dx प्लस जो डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है उनकी ग्रुपिंग करनी है. तो आप देख सकते हैं दो टर्म्स हैं, तो इन दो टर्म का एक ग्रुप बनाइए जो किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो. तो आप ये लिख सकते हैं, मुझे यहाँ लग रहा है डेरिवेटिव ऑफ, देखिए cos x dx बन रहा है. cos x dx तभी बनेगा जब sin x होगा, तो इसका मतलब ये हो गया sin x e रेस टू द पावर y. आप क्रॉस वेरीफाई कीजिए, इसको चेक कीजिए. sin x एज इट इज, sin x एज इट इज e रेस टू द पावर y का डिफरेंशिएशन e रेस टू द पावर y dy, e रेस टू द पावर y dy प्लस e रेस टू द पावर y एज इट इज, e रेस टू द पावर y एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx, cos x dx. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now integrate both the sides. तो cos x dx इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, काम कीजिए अगर आपको लगाना है तो cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin x e raised to the power y is equal to 0. तो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, and integration of differentiation of any function is the function itself is equal to constant of integration. So the answer is sin x common 1 plus e raised to the power y is equal to constant. Any doubt by grouping method? No, sir. No, sir. ठीक है, अब फॉर्मूले से करते हैं इसी क्वेश्चन को. फॉर्मूला है m dx प्लस n dy इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. m पूरा लिखना है. m है आपका e raised to the power y plus 1 cos x dx प्लस n dy. n में आपको वो टर्म नहीं लिखना है जिसमें x हो,
तो यहाँ पे n है e रेस टू द पावर y sin x, तो इसमें ऑलरेडी x है, तो आप कोई टर्म नहीं लिखेंगे, आप सिंपली ज़ीरो लिखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई टर्म ही नहीं है जिसमें x ना हो, x ना हो। समझ में आई बात? Yes, sir. चलिए, अब फॉर्मूले में ये ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि आपको जब m डी एक्स वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है तो m को कांस्टेंट, m में y को कांस्टेंट एज्यूम करना है। तो e रेस टू द पावर y प्लस 1 तो कांस्टेंट हो गया, तो ये तो एज इट इज़ हो गया, और इंटीग्रेशन सिर्फ cos x का होगा, वो sin x हो गया, और यहाँ पे ज़ीरो का इंटीग्रेशन ज़ीरो होता ही है, इज इक्वल टू c। दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. You can take the screenshot. So guys, this is the exact differential equation. सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को m dx प्लस n dy इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्मेट में लिखना है, फिर m और n की वैल्यूज़ लिखनी है कि व्हाट इज़ m व्हाट इज़ n, फिर आपको del m अपॉन del y और del n अपॉन del x कैलकुलेट करना है। इफ del m अपॉन del y इज इक्वल टू del n अपॉन del x, देन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट। इफ इट इज एग्जैक्ट, then we can solve this exact differential equation by using two methods, either by grouping method or by direct formula. This is it for today, क्योंकि इसके बाद में फिर नया आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगा हमारा। Any question? No, sir. Anybody has any doubt? Please ask. Okay, put your enrollment number in the chat box. And guys, I've already told you, from 16 February onwards your offline classes will be there, so please do come. In fact, you must come before 16th of February. From 16th of February, no online classes will be there, only offline classes will be there. So if you are not coming, then it will be your great loss. हेलो सर। Yes, please. सर सेक्शन बी को आप ही पढ़ाओगे क्या? डिसाइड हो गया? नहीं हुआ अभी तक। ओके सर। हेलो सर। Yes. सर गूगल क्लासरूम का लिंक कौन से सेक्शन में आप? सर बी में। बी में अभी नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने बी को गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं किया है बच्चा। ठीक है सर। हाँ, सेक्शन ए एंड सेक्शन सी आई विल बी टेकिंग, दैट्स व्हाई स्टिल आई डिडंट ऐड सेक्शन बी स्टूडेंट्स। So guys, thank you so much, and please revise today's class before attending the next class. Thank you, sir. It's very important. Please do revise. Thank you, sir. Thank you. Thank you so Thank you, much. sir. Thank you. Okay, thank you, sir.